پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو خدا کا دن ہے، جی اٹھنے کا دن ہے، اس کو ہم منا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہاللیلویا، ہم زندہ ہیں، اور یہ جو زندگی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے خدا کی۔ یہ بہت قیمتی زندگی ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو اچھے کاموں کے لیے صرف کریں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج عید قیامت المسیح پوری دنیا میں بڑے جوش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ ایک خاص دن ہے۔ اس دن میں ہمیں ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا، ایک دوسرے کے لیے محبت کو بانٹنا، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، کیونکہ آج عید قیامت المسیحی، جس کو ایسٹر بولتے ہیں، آج پوری دنیا میں اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ بات کا سلسلہ نہ کبھی ختم ہوا ہے، اور نہ ہی کبھی ختم ہوگا، اور نہ ہی اسے کوئی ختم کر سکتا ہے۔ یہ جو دن ہے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی چل رہا ہے، اور آنے والی صدیوں میں بھی چلتا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کو کوئی ختم کرنے کی کسی کی طاقت نہیں، کیونکہ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے زندہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ آج تک بلکہ ابد تک وہ زندہ خدا۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ بعد میں چیک کر لیں، پہلے کلام کی طرف توجہ دیں، کیونکہ یہ کلام جو ہے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں۔ جس طرح بہنوں کے لیے میک اپ یا ڈریس ضروری ہے نا، اسی لیے یہ ایمانداروں کے لیے کلام۔ ہاللیلویا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھیں کہ یہ جو ایک میک اپ سے آپ کے جو چہرے کو نکھارتا ہے، یہ زیور سے جو آپ کی قدرت، آپ کی اندرونی شخصیت کو نکھارتا ہے، اس کا مول کوئی دنیا میں دے سکتے ہیں؟ اس کو سننے کے لیے عقل اور دانائی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، انسان شروع ہی سے میں گنہگار تھا، اور جب انسان گناہ میں پڑا تو اس پر موت کا حکم جاری کیا گیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ذرا غور سے سنیں، اور جو خدا نے انسان پر بہت بڑا جو احسان کیا ہے، اور وہ یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، تاکہ انسان جو ہے وہ زندگی پر، انسان جو ہے جو اس پر موت کا حکم ہے وہ ٹل جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن انسان ابھی بھی گناہ میں مبتلا ہے۔ کیا اپنے آپ کو وہ موت سے چھڑا سکتا ہے؟ کیا انسان اپنے آپ کو موت سے چھڑا سکتا ہے؟ کبھی نہیں چھڑا سکتا، جب تک کہ وہ خدا کے قریب نہ آئے، خدا کے پاس نہ ہو، اور
मेरा ईमान है कि मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं और जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। आए हम देखें, खुदा के कलाम में से देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से हम 9 आयत तक पढ़ें। हाँ जी पढ़ें, जिसके पास कलाम में पढ़ें ऊंची आवाज में पढ़ें। लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से 9 आयत तक। हाँ जी बुलंद आवाज में पढ़े बच्चे। शब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया जी, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही हाँ उन जी। खुशबूदार चीजों को हाँ जी। तैयार की थी लेकर कब्र पर आए जी, और पत्थर को कब्र पर से हटा हुआ पाया, हाँ जी, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। हाँ जी। आगे। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जी, जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हाँ जी। वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। बल्कि वो यहाँ नहीं बल्कि वो जी उठा है। जी उठा है। वो मेरे साथ बोले वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जी उठा है। कितनी बड़ी बात है कि आज हमारा यीशु जिंदा है, वो जी उठा है। मेरे अजीजों, यीशु के पीछे हम जिंदगी देखें, पीछे थोड़ा सा जाए तो यीशु ने अपने आप को खुदा के ताबे किया। और जब हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा और उससे वो काम करवाए जो खुदा चाहता था। यीशु की जिंदगी, पिछली जिंदगी पर गौर करें तो यीशु ने बहुत से बड़े बड़े मौजज़ात किए थे। मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को पाक साफ किया, यहां तक कि उसने बदरूहें भी निकाली। यह है यीशु की जिंदगी। लेकिन जब यीशु अपने इलाका में या दूसरे इलाका में जाता, मौजज़ात करता, खुदा की तालीम देता, तो वो एक खुदा की कुदरत में था। लेकिन जब फकीरों फरीसियों ने जब इस बात को सुना और उन्हें देखते और जांचते पहचानते, लेकिन यीशु के पीछे ना होते थे। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं और क्या देखते हैं। अगर हम यीशु को देखते हैं तो उसके दुखों पर गौर करते हैं, उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि दुनिया में ऐसा कोई निजात दहिंदा नहीं आया जिसने दुख उठाकर हमें जिंदगी बख्शी। यीशु को जब पकड़वाया गया तो उन लोगों पर कोई इल्जाम उन्हें नजर नहीं आता था कि हम यीशु को कैसे पकड़ें, कैसे इसे गिरफ्तार करें। लेकिन यीशु पर चंद इल्जाम उन्होंने आयद किए, चंद इल्जाम यीशु पर लगाए, जिसमें था शिरक करना। यहूदी कहते थे कि ये अपने आप को खुदा कहता है और खुदा का ममसूह, खुदा का बेटा कहता है। फिर था कि ये बगावत करता है और कैसर को जज़ा देने से ये लोगों को मना करता है। फिर ये सब्बत के दिन को नहीं मानता
सब्त के दिन कानून की खिलाफ वर्जी करता है और यीशु लोगों के गुनाह माफ करता है और ये खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है। और फिर एक इल्जाम था कि ये हैकल को गिराने और 3 दिन में खड़ा करने का ये दावा करता है। ये यीशु पर इल्जाम लगाए गए थे। आज हमारी जिंदगी में क्या है? आज अपने आप को अगर इस जगह पर रखते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या है? और देखें, सब्त के दिन से पहले जब हम इस बात को, आज के दिन को मना रहे हैं, ये ईस्टर का दिन है। खुदा का कलाम कहता है कि सुबह सवेरे चंद औरतें खुशबूदार चीजें लेकर कब्र की तरफ रवाना हो। इनमें से एक औरत जिसने उसको जन्म दिया, एक औरत जिसने यीशु के पांव को अतर से धोया, और ऐसी औरतें थी जिनको यीशु ने बदरुओं से गिरफ्तार थी जो उनको रिहा किया, और कुछ ऐसी औरतें थी जिन्होंने खुदा के यीशु के बहुत बड़े मौजज़ात देखे। वो सुबह सवेरे उठी और अपने साथ खुशबूदार चीजें ली और रास्ते में वो बातें करती जा रही हैं, क्योंकि यहूदी दस्तूर के मुताबिक मुर्दे को औरतें थी जो वो खुशबूदार चीजें लगाती थी जिसमें अतर होता था। उस जिस्म को, उस मुर्दा जिस्म पर वो खुशबूदार चीजें लगाती थी। तो जब वो रास्ते में जा रही थी तो वो आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रही थी कि इतना भारी जो पत्थर है वो हम कैसे उसे पीछे करेंगे, उसे कैसे लुढ़काएंगे। जो पत्थर था जो यीशु की कब्र पर रखा गया था वो कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि उस पत्थर पर भी मोहरें लगाई गई थी और वहां पर पहरे बैठाए गए थे। जब ये औरतें जा रही थी तो उन्होंने अपने आप ये कमजोर किया, ये डरी हुई थी, रोमी हुकूमत से डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारे यीशु को, हमारे रबी को, हमारे उस्ताद को इस रोमी हुकूमत ने नजायज मारा है। लेकिन क्योंकि ये नविश्ता जो था, जो लिखा था, ये तो पूरा होना था, लेकिन मोहब्बत, एक प्यार, एक चाहत इस चीज की गवाही दे रही थी कि क्या यीशु जो हमारे साथ चलता बैठता उठता था आज वो कब्र में पड़ा है। तो मेरे अजीजों, जब वो कब्र के पास गई तो वो हैरान हो गई कि इतना भारी जो पत्थर था वो कब्र से लुढ़का हुआ था। वो परेशान हुई, उन्होंने देखा ये क्या माजरा है, ये क्यों कर हुआ। वो दौड़ी गई और अंदर देखा, अंदर यीशु की लाश उसने नजर ना आई, कब्र को उसने खाली पाया। वो एक दूसरे से बातें करने लगी, वो कहने लगी यीशु की लाश को कोई उठाकर ले गया है। तो मेरे अजीजों, वहां उन्हें 2 फरिश्ते जो सफेद लिबास में थे, रूहानी लिबास में थे, वो खड़े थे और उन्होंने पहली गवाही उस कब्र में दी कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो जी उठा है। एक दूसरे के हाथ मिलाकर कहें कि यीशु जी उठा। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और बोले यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि
ईस्टर तो आपकी जिंदगी में बहुत से आए, लेकिन आज का ईस्टर आपकी जिंदगी में एक अनोखा होना चाहिए, तब्दील करने वाला, बदलने वाला। हालेलुया, बदलने वाला होना चाहिए। मैं आपको इस दिन की एक भेद बताता हूँ, सुनने के लिए तैयार है? सुनेंगे? गौर करेंगे? यीशु अपनी पूरी जिंदगी में उसने ऐसे काम किए हैं जो पूरी दुनिया का कोई भी नबी या कोई भी रसूल नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिंदा खुदा था, वो मुकम्मल खुदा था, मुकम्मल बेटा था और मुकम्मल ही रूहे पाक था। हालेलुया। एक भेद की बात मैं बताता हूं, आजकल पूरी दुनिया में हर एक इंसान, पूरी कायनात में हर एक इंसान इस बात को सोचता है कि एक दिन हमने मरना है और पता नहीं हमें जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे ही है ना? हाँ, अच्छे काम किए होंगे, शायद रब सानू जन्नत दे दे। अच्छे हमारे काम थोड़े से भी अच्छे होंगे, वो जन्नत में ले जाएंगे, शायद मिले या ना मिले। एक खुदा दे हाथ च जन्नत जेड़ी है ना, ये किसके हाथ में है? ये खुदा के हाथ में है, वो दे या ना दे, ये इंसान की सोच है। हर एक इंसान इस बात को सोचता है, पर आज हम अपनी मर्जी से फरदौस में जा सकते हैं। पता है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल भेत दसना पिया कि असी अपनी मर्जी नाल किथे जा सकते हैं? फरदौस च जा सकते हैं। भाई फयाज साहब, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हम अपनी मर्जी से फरदौस बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ तो खुश होना चाहिए कि मुंह लिटक गए ना, वो जाना चाहते हैं फरदौस च, तो तुसी अपनी मर्जी च जा वजह से जा सकते हैं। खुदा का कलाम ना आपको रोकता है, ना खुदा का हुक्म है कि वो आपको रोकता है। आप अपनी मर्जी से फरदौस को चॉइस कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। उस खुदा की हीलिंग को आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसमें ना कोई किताब, ना कोई नबी, ना किसी की मार्फत लिखा है, ये आपकी मर्जी है। यीशु ने खुद इख्तियार दिया है। कब दिया है? जब आप उसके जी उठने का इकरार करते हैं, उसका जिंदा खुदा होने का इकरार करते हैं, फिर आप जन्नत फरदौस में जाएंगे। ये आपके बस में है, ये किसी इंसान के बस में नहीं है, ये आपके खुद इख्तियार में है कि आप जन्नत जा सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है यूहन्ना की इंजील में, उसका 5 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, सुनेंगे खुदा का कलाम क्या फरमाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे कलाम को सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, वो हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। कितनी बात है, आप यकीन करते हैं? मानते हैं? मानते हैं ना? कितना कुछ यकीन है आपका कि वो हमारा यीशु जिंदा है, वो आसमान पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? जन्नत तो आपके हाथ में है, फरदौस आपके हाथ में। जब हम देखते हैं कि जब इंसान मरता था तो वो बाप इब्राहिम की गोद में जाता था। सब ईमानदार जितने भी हैं वो बाप इब्राहिम की गोद में हैं। जब यीशु ने सलीब पर अपना दम दिया और कहा
कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और दम दे दिया। जब वो कब्र में था तो वो 3 दिन आलमे रुआ में था। हालेलुया। और यीशु ने, आपको बताऊं, आलमे रुआ में भी यीशु ने ना मुनादी की। वहां जो रास्तबाज लोग थे वो इब्राहिम की गोद में थे, जो शयातीन के लोग थे, जो गुनाहगार थे, वो दूसरी तरफ थे। लेकिन खुदा ने, यीशु ने वहां भी मुनादी की। और आप जानते हैं, जब यीशु ने ये मुनादी की, जब वो जिंदा हुआ तो बहुत सी कब्रें, कलाम कहता है बहुत सी रास्तबाजों की कब्रें जो है वो खुल गई, वो जिंदा हुए, वो अपने शहरों में जाते हुए दिखाई दिए जब यीशु जिंदा हुआ। हालेलुया। ये है रास्तबाज, ये है उसकी जिंदगी। और सबसे बड़ी बात ये है, अब हमने इब्राहिम की गोद में नहीं जाना, क्योंकि यीशु ने कहा है, क्या कहा है? उस डाकू से क्या कहा था? कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हमने डायरेक्ट अब फरदौस में जाना है, अब भी इब्राहिम की गोद में हमें नहीं जाना। फरदौस में यीशु के साथ जाएंगे, तब जाएंगे जब हमारा ईमान और भरोसा उस पर। ईस्टर आपकी जिंदगी में पड़े आए, बहुत से ईस्टर आएंगे, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये जो ईस्टर है ये हमें क्या बताता है? आजिज़ होना, हलीम होना, अपने आप को पस्त करना, अपने आप को घायल कर देना, अपने आप को खत्म कर देना। अगर हम यीशु की मानद है तो फिर यीशु ने तो ऐसा किया था, हलीम, पस्त कर दिया, गाली के बदले गाली ना दी, मार के बदले ना मारा, अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि मैं इब्ने आदम को, खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए। हालेलुया। आज अपने परदोस के जो टिकट है ना, वो आप कटवा लें, खुदा आपकी जिंदगी करें। मरना तो सब है, लेकिन जब भी मरे तो हम यीशु का वो कॉल याद करें, वो आपके कह रहा है कि तू आज मेरे साथ फरदौस में। हालेलुया। फरदौस में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और उसके लिए हमें बहुत से काम करने हैं। हालेलुया। यीशु की सलीब खाली है, यीशु की कब्र भी खाली है, तो यीशु कहाँ है? आपसे सवाल, तो फिर यीशु कहाँ है? कहाँ है यीशु? यीशु की कब्र भी खाली है और सलीब भी खाली है, तो यीशु कहाँ पे है? तो बता सकता है? हमारे दरमियान। कहाँ पे है यीशु? हमारे दरमियान। आपके दिलों में कभी महसूस किया? कैसे? हालेलुया। जब हम बहुत गम दुख में होते यीशु तो की वो हमें तसल्ली सलीब पर भी नहीं है, वो कब्र पर भी नहीं है, लेकिन यीशु आपके साथ है। आमीन। उसे इधर उधर मत ढूंढे। लोग बड़ी बड़ी दूरां ते जांदे ने, बड़ी बड़ी मीटिंगां ते जांदे ने, शायद यीशु उत्थे मिल जाए, शायद यीशु बड़े बड़े चर्चा च मिल जाए, बड़ी बड़ी कन्वेंशन ते मिल जाए, इस तरह ही है ना। लेकिन आप महसूस कर, वो आपके साथ है। हालेलुया। उसे टोए, परखे और देखे, अभी भी उसके जख्म आपके गुनाहों से ताजे हैं, अभी भी उसके पसली में से खून निकल रहा है। वो आज भी पुकार रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, देख मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, खून बहाया, लेकिन तू मुझे कहां ढूंढता है? मुझे महसूस कर, मैं तेरे पास हूं, मुझे देख, मैं तेरे पास हूं, मुझे देख, मैं तेरे पास। मेरे अजीजों,
آج کا یہ دن ہمارے لیے ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہوں تو ہمیں ہمارے زندہ یسوع کا جو بدن ہے، جو زخمی بدن ہے، اس میں ہم نظر آئیں۔ ہاللیلویا، تاکہ وہ کہہ سکے، فخر سے کہہ سکے کہ یہ میری پیاری بیٹی ہے اور یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویا۔ اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کام کاج، روپیہ پیسہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی سانس ہونی چاہیے، اور سانس جب تک ہے تو آپ کی زندگی ہے، اور سانس کون دے گا؟ وہ ہمارا یسوع۔ آج کا ایسٹر آپ کی زندگی میں ایک نیا ایسٹر ہونا چاہیے۔ بہت سے آپ نے ایسٹر منائے ہیں، بہت سے آپ منائیں گے، لیکن اس ایسٹر کو یاد رکھیں کہ یہ ایسٹر جو ہے یہ 31 ڈیٹ کو آیا ہے۔ 31 ڈیٹ کو آیا ہے۔ جب صبح پہلی آئے گی، پہلا دن آئے گا، تو خدا آپ کے لیے پہلے سے ہی پیار کرے گا۔ آپ سب کو بچائے اور ہم بڑی جلال کے لیے استعمال کریں۔ آئے ہم چھوٹی سی دعا کریں۔ اے زندہ آسمانی باپ، خدا عظیم قدرت کے خدا، تو رب الفاظ رب العالمین ہے، تو ہی خداوند لشکروں کا خدا ہے۔ ہم دیکھ خداوند آج پوری دنیا میں ہم سب تیرے جی اٹھنے کا دن منا رہے ہیں، کیونکہ تو زندہ خدا ہے۔ تیری قبر آج بھی خالی ہے خداوند۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو مناتے ہیں اور خداوند تیرے آگے جھکتے ہیں کہ تو آنے والے دنوں میں، آنے والے تمام ایام میں خداوند تو ہماری رہنمائی اور مدد کرے گا اور ہمیں بچائے گا اور ہمیں اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ تیری قدرت بہت بڑی ہے۔ میں ان زندگیوں کو جو اس وقت خداوند تیرے آگے جھکے ہیں، ان کے خاندانوں کو تیرے پاک قبضے میں دیتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر ان سب کی رہنمائی اور مدد کر، یہ سب تیرے پاک عظیم اور قدرت والے نام سے مانگتے ہیں۔